हाँ जी, सारे ਨੂੰ आवाज़ आ रही है जी। एवरीवन, आवाज़ आ रही है। गुड इवनिंग जी सारे ਨੂੰ। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। ओके जी, ओके। ठीक है जी, 2 मिनट ਆਪਾਂ 2-3 गुड मिनट ਤੇ इवनिंग ਸਟਾਰਟ सर। ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਨਐਮਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਨਐਮਆਰ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਐਮਆਰ ਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਗਨਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਿਗਨਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ डिटेल देखी थी। सिग्नल्स किस तरह निकाल लीदे सी इक्विवेलेंट ਤੇ ਨੋਨ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਗਨਲਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਟ ਤੇ ਨੋਨ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਪਿਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਪਿਨ ਸਟੇਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਪਿਨ ਸਟੇਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2i+1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2i+1 ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਪਿਨ ਸਟੇਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ i ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਿਨ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਿਨ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ i ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। i ਦਾ ਟੇਬਲ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ज्वाइन कर जाया करो जी। 8:55 ਤੇ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ज्वाइन ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ CH3COCH3 ਤੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਸੀਟੋਨ CH3COCH3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, CH3COCH3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ NMR ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ 1H NMR ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ NMR ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, 1 ਸਿਗਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 3 ਤੇ ਆਹ 3 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਇਹ ਆਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਐਸੀਟੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 13C NMR ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਐਸੀਟੋਨ ਦੇ 13C NMR ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ NMR ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ 1H NMR ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਐਸੀਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 2 ਸਿਗਨਲ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 13C NMR ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ 13C NMR ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ NMR ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। 13C ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ NMR ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 13C NMR ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਗਨਲਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸਿਗਨਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਸਿਗਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ,
NMR की स्टडी कर लेनी है। प्रोटोन NMR दिता है कि 13C NMR दिता है, ठीक है। फिलहाल आप प्रोटोन NMR के सिग्नल कड्ढने सीखे है, ठीक है जी। पता लग गया सारिਆਂ ਨੂੰ की पॉइंट मैं रखा, एवरीवन पता लग गया किस बारे में गल कि दो गल्लां प्रोटोन NMR ते 13C NMR। फिलहाल आप प्रोटोन NMR पढ़ते पे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लो, नैक्सट जो आप कल किया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अंदर दसो किन्ने सिग्नल्स होंगे, किन्ने सिग्नल्स होंगे, किन्ने होंगे 2 हो। बाकी देखो सारे इंटरेक्ट करो प्लीज, अपने माइक ऑन करके आंसर दे दिया करो, फिर आप माइक ऑफ कर लिया करो। सिग्नल्स 4 सिग्नल्स होर ध्यान नाल समझ लो। कल जिहदा भी डाउट सीगा डबल बॉन्ड वाला, देखो इनू की करांगे, खोल के लिख लांगे CH3 C दे नाल H। प्लीज माइक ऑफ कर लिया करो, माइक ऑफ कर लो जी। डबल बॉन्ड CH माइक ऑफ कर लो जी प्लीज। मीनाक्षी राजन मैम माइक ऑफ कर लो तुसी। हाँ जी, देखो इस मॉलिक्यूल में आप की खोल के लिख लिया। खोल के लिखांगे तो देखो आ जो कार्बन के की है डबल बॉन्ड है, तो उत्ते वाला प्रोटोन के सामने की है CH3 है, नीचे वाले प्रोटोन के सामने की है H। तो यदा मतलब ये दोवें की है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स पे है, ठीक है। आ 3 प्रोटोन जोड़े आपस का इक्विवेलेंट है, ये C कैटेगरी के हो गए। ये चौथा प्रोटोन जोड़ा ये अलग कैटेगरी का प्रोटोन है, तो ये की हो गया D कैटेगरी का प्रोटोन हो गया। तो यदा मतलब की हो गया, ये अंदर 4 तरह के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन्स है, ठीक है जी। जे किसी को नहीं पता लग रहा नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन्स किस तरह निकाले आपां, तो कल का वीडियो देख लेना तुसी, तो उहदे तो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। हाँ जी मैम, कल की वीडियो लगाई तुसी देखी है, कल का लेक्चर मैम तुसी मैनूं मैसेज कर देना इस जो क्लास खत्म होएगी, तुहानूं मैं कल की वीडियो भेज दूंगा, उहदे तो पता लग जाएगा तुहानूं, ठीक है। कल असीं डिस्कस कर लिया सी। हाँ जी, तो 4 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन्स आ जाएंगे। 4 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन्स की देंगे, 4 सिग्नल्स देंगे आपां, ठीक है जी। पता लग गया। अज आप नवा काम करांगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो अज आप की करना है, आप अज आप पढ़नी है शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। शील्डिंग ते डी शील्डिंग बारे गल करनी है। शील्डिंग की होंदी है, डी शील्डिंग की होंदी है, ठीक है। शील्डिंग डी शील्डिंग सुनिया होया सारे ने, नेम फेमिलियर हो। शील्डिंग डी शील्डिंग पढ़न तो पहले आपां की पढ़ांगे, इंड्यूस्ड मैग्नैटिक फील्ड पढ़ांगे। सब तो पहले पढ़ांगे इंड्यूस्ड मैग्नैटिक फील्ड की होंदी है, ठीक है जी। बड़ी सिंपल भाषा च आपां गल करिए, इंड्यूस्ड मैग्नैटिक फील्ड की होंदी है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, बेंजीन हो सकता है, एसिटाइलिन हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उन्होंने आप की करते हैं मैग्नैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, मैग्नैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो मॉलिक्यूल के इलैक्ट्रॉन्स की करते हैं, सर्कुलेट करने शुरू कर देंगे। उस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलैक्ट्रॉन्स पे होंगे है, वो की करना शुरू कर देंगे है, इलैक्ट्रॉन्स सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे है, ठीक है। वो सर्कुलेट जो करते हैं, जो इलैक्ट्रॉन्स वो मॉलिक्यूल के सर्कुलेट करते हैं, वो की कर देंगे एक मैग्नैटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देंगे है, वो एक मैग्नैटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देंगे है, ठीक है जी। ये जी मैग्नैटिक फील्ड नवी प्रोड्यूस हुई, उस मैग्नैटिक फील्ड को आप की नाम दे देने, कि मैग्नैटिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नैटिक फील्ड, जी दूजे करके बनी है उसका नाम की दे देने हैं इंड्यूस्ड मैग्नैटिक फील्ड, ठीक है जी। पता लगा, कोई भी मॉलिक्यूल है उसनों अगर मैग्नैटिक फील्ड के रखांगे तो उस मॉलिक्यूल के अंदर वाले इलैक्ट्रॉन्स की करते हैं, रोटेट करना शुरू कर देंगे, सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे है। जो इलैक्ट्रॉन की सर्कुलेशन होंगी है, तो की होंगी है, एक नवी मैग्नैटिक फील्ड बन जाती है। उस नवी मैग्नैटिक फील्ड को आप की नाम दे देंगे सीगे इंड्यूस्ड मैग्नैटिक फील्ड, ठीक है जी। पता लग गया एवरीवन, पता लग गया बाकियों को भी, ठीक है। हुण वो कहता कि इंड्यूस्ड मैग्नैटिक फील्ड तो बन गई, इंड्यूस्ड मैग्नैटिक फील्ड के नाल आपां शील्डिंग ते डी शील्डिंग किस तरह देख सकते हैं। तो वो कहता जे इंड्यूस्ड मैग्नैटिक फील्ड की करे, वो कहता कि जे इंड्यूस्ड मैग्नैटिक फील्ड इत्थे लिख देना है, इफ
induced magnetic field opposes the applied field. Then the net experienced by the proton decreases this is called shielding of proton. 2 मिनट में लिख ला फिर समझाना है। shielding of proton देखो ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਇੰਡਿਊਸ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੰਡਿਊਸ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਉਹ ਜੇ ਕੀ ਕਰੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਅਪਲਾਈਡ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਲਾਈਡ ਫੀਲਡ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਇੰਡਿਊਸ ਫੀਲਡ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇੰਡਿਊਸ ਫੀਲਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਘੱਟ ਫੀਲਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੀ ਹੋਣ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ, ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੀਲਡ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਫੀਲਡ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਫੀਲਸ ਮੋਰ ਫੀਲਡ so we say proton is de-shielded। ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ मैं दोबारा समझाना। देखो मैं की क्या इंड्यूस मैगनेटिक फील्ड पता लग गया। वो कहता जे इंड्यूस मैगनेटिक फील्ड जी है जी नवी बनी है मैगनेटिक फील्ड वो अपलाइड मैगनेटिक फील्ड के जे ओपोजिट डायरैक्शन च होएगी तो आप की कहांगे प्रोटोन नू घट फील्ड मिली। जे घट फील्ड मिलेगी तो आप की कह देंगे प्रोटोन की होगी शील्डिंग होगी। ठीक है, हुण इहदी एग्जाम्पल किस तरह लैने आप इहदी एग्जाम्पल देखो किस तरह एक्सप्लेन करांगे। मैं तो सेव कर ला, ये लिख लिया सारे ने, लिख लिया जी, स्क्रीनशॉट ले लो जी। ठीक है जी, ठीक है जी, पीडीएफ बना देंगे। तो देखो यदि की एग्जाम्पल आप लेने बेंजीन बना लेने। ठीक है जी, आ बेंजीन बनाई। ठीक है जी, ठीक है, आ बेंजीन है। बेंजीन दे विच की है 6 प्रोटोन्स है। ठीक है, बेंजीन नू आप की कर रहे हैं अपलाइड फील्ड दे रहे हैं। मान लो H नोट है, H नोट की है फील्ड अप्लाई करते पे हैं। ये किहड़ी है एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल अपलाइड फील्ड। ध्यान नाल समझना हुण एक्सटर्नल अपलाइड फील्ड। ठीक है, जदों अपलाइड फील्ड अप्लाई करांगे तो की कहंदे सी बेंजीन की अपने को मॉलिक्यूल है। बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर की होंगे इलैक्ट्रॉन्स होंगे। इलैक्ट्रॉन्स आप कलर कोई होर ना शो कर देने हैं। इलैक्ट्रॉन्स आप ब्लू कलर के नाल शो करते। इलैक्ट्रॉन्स की होए बेंजीन के अंदर सर्कुलेट करना शुरू करते। ठीक है, ठीक है जी, पता लग गया ना। इलैक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर जो आप फील्ड प्रोड्यूस की। हुण देखो जो इलैक्ट्रॉन सर्कुलेट करूगा, जो इलैक्ट्रॉन सर्कुलेट करूगा तो की प्रोड्यूस होएगा, दसो मैनू की प्रोड्यूस होएगा, की प्रोड्यूस हो जाएगा। अब केड़ी फील्ड इंड्यूस मैगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी कुछ इस डायरेक्शन दे विच। ठीक है,
ਇੰਡਿਊਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਗੀ ਕੁਝ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੀਲਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ मैम, मैम बाहर से अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है मैम, बाहर से अंदर आती है हमेशा। जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है हमेशा बाहर से अंदर आती है, ठीक है मैम, हर मॉलिक्यूल में। अब मैं इसके बाद एसिटाइलिन करवाऊंगा, उसमें भी आप देखना बाहर से अंदर डायरेक्शन आएगी उसकी, ठीक है मैम। अप्लाइड फील्ड तो मॉलिक्यूल पे डायरेक्ट लगाओगे ना। हाँ जी, देखो 2 मिनट में पेन। हाँ जी, देखो ये क्या है, इनसाइड द बेंजीन के अंदर बात करें, इनसाइड द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के अंदर क्या है, ये डायरेक्शन है इंड्यूस्ड फील्ड की। प्लीज माइक ऑफ कर लो। इंड्यूस्ड फील्ड दी ये डायरेक्शन है अप्लाइड फील्ड दी। तो देखो की होया, अंदरले पासे बेंजीन दे अंदरले पासे की है इंड्यूस्ड फील्ड ते अप्लाइड फील्ड की है ओपोजिट डायरेक्शन च है। जे ओपोजिट डायरेक्शन च है तो आ वाला प्रोटोन जेड़ा अंदरले पासे सीगे प्रोटोन्स, ये की है घट फील्ड एक्सपीरियंस करनगे। मनदे हो गल नूं? जिन्नी फील्ड एक्सपीरियंस करनी चाहिए सी उहदे नालों घट एक्सपीरियंस करनगे। तो इहदा मतलब की होया, प्रोटोन्स एक्सपीरियंस लैस फील्ड। तो ये मतलब की होया, प्रोटोन्स की हो गए शील्डेड हो गए, प्रोटोन्स की हो गए शील्डेड हो गए, ठीक है। इन्नी गल पता लग गई सारे नूं, ठीक है। एक कंसैप्ट जरूर समझना थोड़ा जरूरी है कि किस तरह तुहाडी शील्डिंग हो रही, किस तरह डी शील्डिंग। हुण ध्यान नाल देखो आउटसाइड द बेंजीन रिंग, हुण जे मैं इनू मूव करदा, हुण देखो आउटसाइड द बेन किदी मैम, शील्डिंग प्रोटॉन्स दी, प्रोटॉन मैम देखो इलेक्ट्रॉन्स का काम जस्ट की है इंड्यूस फील्ड लूप क्रिएट करवाना, ठीक है। शील्डिंग डी शील्डिंग आप प्रोटॉन दी करवावांगे, ठीक है मैम। हाँ जी, हुण देखो आउटसाइड द बेंजीन, बेंजीन दा आउटसाइड मतलब आ चीज, बेंजीन दे आउटसाइड ते किन्ने प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन लगे हुए हैं। हुण इन्हां दी डायरेक्शन देखो, इंड्यूस फील्ड दी डायरेक्शन किधर है, उत्ते नूं है, एक ही इंड्यूस फील्ड दी डायरेक्शन, ठीक है। ते अप्लाइड फील्ड भी किधर लग रही है, ऊपर वाली डायरेक्शन च लग रही है। तो ਇਹਦਾ मतलब की होया, प्रोटोन ਨੂੰ जिन्नी फील्ड मिलनी चाहिए सी उस तो ज़्यादा मिलेगी। तो प्रोटोन की करेगा एक्सपीरियंस हायर फील्ड। जे ज़्यादा फील्ड एक्सपीरियंस करेगा तो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, प्रोटोन की हो जाऊगा, डी शील्डेड हो जाऊगा, ठीक है। प्रोटोन जो डी शील्डेड हो गया मतलब वो की है, ज़्यादा फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। तो ये तो की पता लगता है, जोड़ा प्रोटोन डी शील्डेड होंदा है वो कैमिकल शिफ्ट की वैल्यू की होंदी है, हायर होंदी है, ठीक है जी। वो कैमिकल शिफ्ट की वैल्यू की होंदी है, ज़्यादा होंदी है, ठीक है। शील्डेड वाले की कैमिकल शिफ्ट की वैल्यू की होंदी है, लोअर होंदी है, लोअर होंदी है सर, ठीक है। पता लगा, ठीक है। ਇਹਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ बस ये मतलब ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਡੀ ਸ਼ੀਲਡਡ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਡਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੀ ਸ਼ੀਲਡਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਲੋਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨਾ ठीक है जी, इन्ना पता लग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो भी मैं तुहानू दसांगा, वो आप कैमिकल शिफ्ट करते हैं वो करांगे रिलेट ਉਹਨੂੰ, ठीक है जी। इन्ना पता लग गया सारे नूं, लिख लो एक बार स्क्रीनशॉट खिंच लो ਇਹਦਾ। किसी ਨੂੰ कोई डाउट इत्थे तक? ठीक है जी, चलिए अगे। नेक्स्ट देखो,
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ TMS ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ NMR ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ NMR ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਪੈਕਟਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਕਸ ਦਾ। ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਕ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ NMR ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ TMS ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਟੈਟਰਾ ਮਿਥਾਈਲ ਸਿਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਨ NMR। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੈਸੀ ਕਿ ਟੈਟਰਾ ਮਿਥਾਈਲ ਸਿਲੇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ NMR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, 12 ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੌਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਰ ਜਿਹੜਾ 95% ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 85% ਜਾਂ 80% ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪਰ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ, ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ TMS ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ TMS ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਟਰਾ ਮਿਥਾਈਲ ਸਿਲੇਨ। ਟੈਟਰਾ ਮਿਥਾਈਲ ਸਿਲੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ 4 ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਮਿਥਾਈਲ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 12 ਦੇ 12 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਟਰਾ ਮਿਥਾਈਲ ਸਿਲੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਪ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਂਸ ਸਿਗਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਟਰਾ ਮਿਥਾਈਲ ਸਿਲੇਨ ਵਾਸਤੇ, 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਟੈਂਸ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੀਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਸ਼ਾਰਪ ਸਿਗਨਲ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ TMS ਹੁੰਦਾ ਹੈ, TMS ਇਜ਼ ਕੈਮੀਕਲੀ ਇਨਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ NMR ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ NMR ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ NMR ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। NMR ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਥੇਨੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਥੇਨੋਲ C2H5OH ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ml 10 ml ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, TMS ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਟਰਾ ਮਿਥਾਈਲ ਸਿਲੇਨ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ TMS ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ TMS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲੀ ਇਨਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਨਰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, TMS ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਐਮਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਨਐਮਆਰ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨਐਮਆਰ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਐਮਐਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਟੀਐਮਐਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਮਐਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं केमिकल शिफ्ट। हुण देखो जी केमिकल शिफ्ट की है, कोई दसेगा मैनू केमिकल शिफ्ट की है? सारे एमएससी। ठीक है जी, केमिकल शिफ्ट की है, शिफ्ट है जी किहदी शिफ्ट है कि सिग्नल दी शिफ्ट ऑफ सिग्नल, 2 मिनट, शिफ्ट ऑफ सिग्नल, सैंपल सिग्नल लिखो, शिफ्ट ऑफ सैंपल सिग्नल फ्रॉम दी टीएमएस सिग्नल, टीएमएस या रेफरेंस सिग्नल लिख लो। ठीक है जी, कि अपना जो सैंपल है वो सिग्नल ते टीएमएस के सिग्नल के विच कितना डिफरेंस है, कितनी शिफ्ट आ रही है, वो की आपां दसदी केमिकल शिफ्ट दसदी है। ठीक है जी, हुण देखो केमिकल शिफ्ट वास्ते की है, एक ग्राफ है, एक टेबल है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨਲਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। आ देखो जी, आ कि अपना टीएमएस सिग्नल है, टीएमएस सिग्नल की शार्प है, तो मैं तुहानूं दस्सिया टीएमएस के सिग्नल की वैल्यू कित्थों दी स्टार्ट होंदी है, कितनी होंदी है, 0 होंदी है। ठीक है, 0 तो लैके कित्थे तक डेल्टा वैल्यू चलती है, केमिकल शिफ्ट कित्थों तक चलती है, 10 तक चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10। ठीक है, 10 तक की होंदी है अपनी केमिकल शिफ्ट होंदी है 0 तो 10 तक। ठीक है, हुण देखो जिवें जिवें केमिकल शिफ्ट इनक्रीज करती है तो आपां की कहने हैं, की होएगी, शील्डिंग होएगी कि डी शील्डिंग होएगी? दसो मैनू की होएगी? प्रोटोन की होएगा? प्रोटोन विल बी डी शील्डेड। ठीक है, हुणे आपां करके आए हैं। ठीक है, हुण मैनू ये दसो, आपां हुणे पढ़िया सी जदों प्रोटोन डी शील्ड हुंदा सीगा तां जिहड़ा प्रोटोन है वो फील्ड घट एक्सपीरियंस करदा सी कि ज़्यादा एक्सपीरियंस करदा सी? ज़्यादा करता सी। ठीक है, जे आपा शील्डेड हुंदा सी तां प्रोटोन जिहड़ा घट एक्सपीरियंस करता सी फील्ड के ज़्यादा? जे शील्डेड हुंदा सी कम। ठीक है जी, हुण एक ही है जी, आप कर चुके शील्डेड डी शील्डेड। जे डेल्टा की वैल्यू इनक्रीज करेगी आप की कहांगे की हो रही है, डी शील्डिंग हो रही है। ठीक है, जे डेल्टा की वैल्यू की कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो आप की कहांगे की हो रही है, शील्डिंग हो रही है। ठीक है, ये तो होगी डेल्टा। ठीक है, ये नाल की आ जाता है अपना टाउ आ जाता है। ठीक है, इनू कहते हैं केमिकल शिफ्ट दा डेल्टा स्केल, केमिकल शिफ्ट दा डेल्टा स्केल। फिर केमिकल शिफ्ट की है टाउ की फॉर्म च भी दी हो सकती है। टाउ की हुंदा है, मैनूं कोई दसेगा टाउ की हुंदा है? टाउ की वैल्यू किहदे बराबर हुंदी है? टाउ की हुंदा है 10 माइनस डेल्टा के बराबर हुंदा है। ठीक है जी, याद रखना टाउ की है 10 माइनस डेल्टा के बराबर हुंदा है। ये भी केमिकल शिफ्ट नूं स्टडी करन दा एक स्केल है। ठीक है, केमिकल शिफ्ट नूं स्टडी करन दा स्केल है। प्लीज़ माइक ऑफ कर लो। ठीक है, जिहड़ा टाउ की वैल्यू की है 10 माइनस डेल्टा, डेल्टा की है 0 तो इत्थे टाउ की वैल्यू की 10। जे डेल्टा की वैल्यू 1 है, 10 माइनस 1 कितनी आ जाएगी, 9। तो एक ही उल्टा चलता है। ठीक है, पेपर दे विच देख लेना, केमिकल शिफ्ट कई बार टाउ की फॉर्म च दी होंगी है। ठीक है, 1 0 इस तरह चलेगा। ठीक है, टाउ पता लग गया?
पता लग गया, ठीक है जी। उस तो बाद ये तो हो गया कैमिकल शिफ्ट। उस तो बाद पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ देखो न्यूमेरिकल ਆਂਦਾ है कैमिकल शिफ्ट ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਰਦਾ ਰੇਸ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਗੈरह खिंच लो जी, खिंचना ਤੇ मैं तो कर दांगा, बाकी नाल कर लिया करो तुसी, ठीक है। मैनू फिर बाद चो सेंड करन च लग जांदा, आधा घंटा लग जांदा, ठीक है। नाल कर लिया करो। देखो नाल नोट्स जरूर बनाई जाओ, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। एज सच क्लास ना कली लगाया करो, कॉपी पेन बनाया करो, ये चीज़ पढ़नी है तुसी बाद चो, ठीक है। हुण मैं तुहानूं जिहड़ा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा लैक्चरर केडर होवे चाहे तुहाडा मास्टर केडर होवे, दोवां दे विच क्वेश्चन तुहानूं मिलूगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, उन्हां विच आया होया है। वो क्वेश्चन किस तरह तुसीं करना है, हमेशा याद रखना जिहड़ी कैमिकल शिफ्ट हैगी है, डेल्टा जिहड़ी हैगी है, वो हमेशा पीपीएम दे विच आंदी है, ठीक है। ये पल्ले बन लो गल। पेपर दे विच जे तुहानूं न्यूमेरिकल नहीं समझ लगदा कि की दिता होया की नहीं दिता, तो हमेशा याद रखना कैमिकल शिफ्ट की हुंदा डेल्टा, ते इहदे यूनिट्स की होणगे पीपीएम दे विच, ठीक है। ये फिक्स है। कैमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला की है, कैमिकल शिफ्ट डेल्टा किहदे बराबर हुंदी है? ऑब्जर्व्ड शिफ्ट। ऑब्जर्व्ड शिफ्ट जिहड़ी होएगी हमेशा किहदे विच दित्ती होएगी? हर्ट्स दे विच दित्ती होएगी, ठीक है। अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी किहदे विच दित्ती हुंदी है? हमेशा मैगाहर्ट्स दे विच। कीता होया सारिਆਂ ने फॉर्मूला कि नहीं? पहली बारी देख रहे हो? नहीं कीता ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਪੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लेंगे, रुको। दो मिनट जी वेट कर लो, मैनू लग नहीं गया। हाँ ये देखो, आ सिग्नल आया हुआ है, ये करते हैं आप। आ क्वेश्चन आया हुआ अपना क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा लैक्चरर के पेपर के आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो की कह रहे हैं, अ कंपाउंड शोज प्रोटोन एनएमआर पीक एट 240 हर्ट्ज डाउनफील्ड, ठीक है। सिग्नल कितने आ रहा है? 240 हर्ट्ज से आ रहा है, ठीक है जी। इन्ना पता लग गया। फ्रॉम द TMS पीक इन अ स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग एट 60 मेगाहर्ट्ज। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आप दी है 60 मेगाहर्ट्ज। तो देखो ये क्वेश्चन तुहानूं हर मास्टर केडर के देखने को मिल जूगा, ठीक है। इनू किस तरह करना तुसीं क्वेश्चन, ये वैसे क्वेश्चन तुहाडा ग्रेस मार्क्स दिते गए सी इस पेपर दे विच, क्योंकि इसदा सही आंसर दिता ही नहीं होया सीगा, ठीक है। इसदा आंसर किवें आना सीगा? तो देखो की आपां फॉर्मूला कीता, कहंदा की कड्डो वैल्यू ऑफ कैमिकल शिफ्ट टाउ इन पीपीएम टू TMS विल बी। कहता कैमिकल शिफ्ट की कर दो वैल्यू फाइंड आउट कर दो, ठीक है जी। हुण ध्यान नाल देखना, टाउ है, ठीक है जी। आपां की कढ़ना सीखिया? डेल्टा, ठीक है। हुण इहदे विच की आंसर आएगा? सब तो पहले आपां की कहा, डेल्टा जिहड़ा है पीपीएम दे विच हुंदा है, किहदे बराबर है? दसो मैनू, किहदे बराबर हुंदा है?
ध्यान नाल देखना, ऑपरेट ऑब्जर्व शिफ्ट किहदे च है, हर्ट्स च है, अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी किहदे च है, मेगाहर्ट्ज च। ध्यान नाल देखना, जे किसी नहीं समझ लगे पूछ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व्ड शिफ्ट कित्थे है, ऑब्जर्व्ड शिफ्ट कित्थे है, 240 हर्ट्स। शिफ्ट देखो, शिफ्ट किवें निकालनी आपां, 240 हर्ट्स ते सिग्नल आया है, कित्थों दी आया, टीएमएस पीक तो आया, फ्रॉम द टीएमएस पीक। टीएमएस पीक कित्थे हुंदी है, 0 ते, तां किन्ना आ गया, शिफ्ट कितनी आ गई, 240 हर्ट्स। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 मेगाहर्ट्स। ध्यान नाल देखना, 60 मेगाहर्ट्स। हुण देखो आपां कैंसलेशन नहीं कर सकते, क्यों, उत्ते की है हर्ट्स, नीचे की है मेगाहर्ट्स। पहले कन्वर्ट करो, 240 हर्ट्स मेगाहर्ट्स नूं हर्ट्स कन्वर्ट करांगे, की बन जाएगा 10⁶ हर्ट्स। हर्ट्स ना हर्ट्स कैंसल, 60 240 ते 4 ते गया, 4 इंटू 10⁻⁻6। हुण तुहानूं पता है 1/10⁻6 पार्ट्स इन मिलियन, पार्ट्स इन मिलियन की हुंदा है, प्लीज। हाँ जी, हाँ जी हाँ मैं दसदा, हाँ जी तुसी की कह रहे हो, हेलो, प्लीज माइक ऑफ कर लो, मैं समझा देना है प्लीज। जिन्हें क्वेश्चन पूछना होता वो माइक ऑन कराया करो, बाकी ऑफ कर लिया करो। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ मैम वही दसन लगा, होर सर तुसी कह रहे सी कुछ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ डाउट सी। चलो मैम देखो, उत्ते अपने को ऑब्जर्व शिफ्ट किहदे विच है, हर्ट्स दे विच है, नीचे अपने को किहदे च है, मैगा हर्ट्स च है। मैम मैगा हर्ट्स नूं हर्ट्स च कन्वर्ट करना पेगा ना, ताइयों आपां कैंसलेशन। मैम मैगा हर्ट्स का मतलब है एक 1 मैगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 10⁻6 ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10⁻⁻9 ਨੈਨੋਮੀਟਰ -9 ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 10⁻6 ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਟਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10⁻6 ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਟਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਯੂਨਿਟ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4 ਇੰਟੂ 10⁻6। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਪੀਪੀਐਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਪੀਐਮ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸੇਗਾ, ਪੀਪੀਐਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ हाँ जी 2 मिनट आप थोड़ा साफ कर लिए, ठीक है। आ की हुंदा है अपना, प्लीज माइक ऑफ कर लो, किदा डोगी बोल रहा है। पीपीएम, ठीक है, पीपीएम की हुंदा है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन च कितनियां जीरो होंदियां, दसो मैनू, मिलियन च कितनियां जीरो होंदियां, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब की होंदा है, 1 मिलियन के अंदर एक पार्ट, ठीक है। तो मतलब एक पार्ट किहदे अंदर, मिलियन के अंदर 1/10⁻6 किहदे बराबर होंदा है, पीपीएम के बराबर होंदा है। तो मतलब पीपीएम किहदे बराबर है, 10⁻6। इन्ना इत्थे तक किसी नूं डाउट, पीपीएम जिहड़ा 10⁻6 के बराबर होंदा है, ठीक है। तो इहदा मतलब 4 इंटू 10⁻6 की आ गया यूनिट, अपने को की आ गया 4 पीपीएम कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हुण देखो, हुण आपां नूं की लगेगा, इत्थे की है 1 पीपीएम 2 पीपीएम 3 पीपीएम 6 पीपीएम। तो इत्थे तो अपना आंसर ही नहीं हैगा। तो इत्थे बड़िया ने मैनू क्या सीगा कि सर ग्रेस मार्क्स, तो इत्थे ग्रेस मार्क्स मिलूगी कि नहीं मिलूगी। तो ये क्वेश्चन सीगा टफ, ध्यान नाल देखो उत्थे। हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इत्थे मैम सारे जिन्हें गलत करके आए सी क्वेश्चन पेपर दे विच। इत्थे की पूछा सी उन्हें, ध्यान नाल देखो, इत्थे उन्हें की पूछा सी टाउ। हुणे मैं तुहानूं कराया कैमिकल शिफ्ट दे की है दो, प्लीज प्लीज माइक ऑफ कर लो प्लीज। कैमिकल शिफ्ट के 2 स्केल है, एक डेल्टा स्केल एक टाउ स्केल, ठीक है। जिहड़ा अपना फॉर्मूला है कैमिकल शिफ्ट निकालन का, वो किहड़े स्केल के थ्रू है, डेल्टा स्केल के थ्रू। आपां नूं की पूछा सी उन्हें, टाउ दे विच आंसर पूछा सी, ठीक है। टाउ किहदे बराबर हुंदा है, 10 - डेल्टा के बराबर हुंदा है। डेल्टा की वैल्यू कितनी आई है 4, 10 - 4 कितना आएगा 6 पीपीएम अपना की आएगा, आंसर आएगा। तो देखो एक क्वेश्चन थोड़ा टफ सीगा, बट बड़ा ही ईजी क्वेश्चन सीगा जे ध्यान नाल तुसीं देखोगे, ठीक है। तो एक ही अपना आंसर आ गया 6 पीपीएम। किसी नूं इहदे विच डाउट प्लीज दस दो, एनीवन। हाँ जी हाँ जी हाँ
हाँ जी मैम, मैं दसदा। देखो सब तो पहले की चीज़ है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ। ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਸ਼ਿਫਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪੋਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 240 ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰਟਜ਼ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਰਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 240, ਤਾਂ 240 ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪੋਨ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ 60, ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਹਰਟਜ਼, ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਾ ਨੂੰ ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10⁻6 ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਟਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਟਜ਼ ਕੈਂਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 240 60 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 4 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4/10⁻6 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਪੀਐਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੀਪੀਐਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1/10⁻6, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਪੀਐਮ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10⁻6 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀਪੀਐਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 4 × 10⁻6 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 4 ਪੀਪੀਐਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਾਲੋ, ਟਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲੋ। ਟਾਊ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 10 - ਡੈਲਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਟਾਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 10 - 4 ਕਰਕੇ 6 ਪੀਪੀਐਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ नहीं नहीं सर, सर कभी भी नहीं बनेगा, चाहे नेट का पेपर हो चाहे मास्टर केडर का पेपर हो, हमेशा आपको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है मेगाहर्ट्ज में ही दी होगी। ठीक है, कभी भी आपको 10⁵ ऐसे करके नहीं दिया होगा। हमेशा जो जैसे आप कहते हैं ना कि वाट, जैसे बल्ब खरीदते हैं वो 9 वाट 12 वाट में आता है, उसी तरह जो एनएमआर होते हैं वो मेगाहर्ट्ज में होते हैं। 60 मेगाहर्ट्ज का, 240 मेगाहर्ट्ज का, मेगाहर्ट्ज में क्वांटिटी होती है एनएमआर मशीन की। ठीक है, हाँ जी। हाँ बनेगा ही बनेगा, वो गारंटेड है, हमेशा बनेगा। क्योंकि मतलब ये मैं कह रहा हूँ ना, बल्ब कभी ऐसे हो सकता है वॉट में ना आए, किसी और जाउल में आना शुरू हो जाए, ऐसे नहीं होता ना। वही सीन है, एनएमआर मशीन है, उसका जो यूनिट है आप कहें मेगाहर्ट्ज है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, पता लग गया। 2 मिनट मैं वेट करो, मैं ना क्वेश्चन लभ ला, मैं क्वेश्चन लिखा सी, वेट करो 2 मिनट, मैं दोबारा प्रेजेंट करना है। वेट मैं क्वेश्चन फाइंड आउट कर ला। हाँ जी, सारे स्क्रीन शो हो रही है जी, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, विजिबल क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। मैं तीन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है अ पीक इन अ प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रम इज लोकेटेड एट 4 पीपीएम। ठीक है, 4 पीपीएम ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ TMS ਦਾ ਸਿਗਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, TMS ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0। ਆਪਣੇ ਕੋਲ NMR ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਪੀਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਪੀਪੀਐਮ ਤੇ, ਡੈਲਟਾ 4 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਪੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, शिफ्ट कितनी होगी 0 तो 4, तो इसका मतलब 4 हर्ट्ज दी की होगी नहीं, हाँ 4 पीपीएम दी थे, 4 पीपीएम दी की होगी। हाँ जी हाँ जी, 2 मिनट। हाँ सॉरी 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 सॉरी,
हाँ हाँ डेल्टा ही दिता, डेल्टा ही दिता, डेल्टा ही दिता। हाँ जी, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਡੈਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 4 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। 4 ppm ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 4 ppm ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ? 400 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 400 मेगाहर्ट्ज की अपनी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। वो कहता है इफ द रेफरेंस इज सैट टू 0 ppm, कहता रेफरेंस जी है 0 ppm लैके चलीए, मतलब आप रेफरेंस TMS लैके चल रहे हैं। कैलकुलेट द सैपरेशन ऑफ द पीक फ्रॉम द रेफरेंस इन 800 मेगाहर्ट्ज स्पैक्ट्रोमीटर। ठीक है, वो कहता 800 मेगाहर्ट्ज स्पैक्ट्रोमीटर के विच की करनी, तो सैपरेशन फाइंड आउट करनी है। उल्ट हो गया क्वेश्चन, चलो आज कर लो, यही कर लो, ये थोड़ा टिपिकल हो गया। सब तो पहले की करो, आपको की दिता है? डेल्टा दिता है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दी है, तो फॉर्मूला लगाओ। डेल्टा PPM किहदे बराबर हुंदा सी? ऑब्जर्व्ड शिफ्ट जिहड़ी कि हर्ट्स दे विच हुंदी सी अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अपने को डेल्टा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। ऑपरेटिंग जिहड़ी शिफ्ट है, ऑब्जर्व शिफ्ट आप फाइंड आउट करनी है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अपने को कितनी है? 400। ऑपरेटिंग ऑब्जर्व शिफ्ट कितनी आ जाएगी? 4 × 400 कितनी आ जाएगी? 1600 हर्ट्स आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? 1600 हर्ट्स। तो इत्थे 400 ही आना सी। ठीक है, तो सैकेंड ऑप्शन आ जाना सीगा। ठीक है जी, तो तुहाडा ईजली सैकेंड ऑप्शन आ जाना सी करैक्ट। ठीक है जी, हुण नैक्सट वाला क्वेश्चन ट्राई। हाँ जी, हाँ ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो। हाँ देख लो, डेल्टा की सी PPM दे विच। ठीक है, ऑपरेटिंग शिफ्ट ऑब्जर्व शिफ्ट हर्ट्ज दे विच सीगी अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी किदे सीगी? मैगाहर्ट्ज दे विच। मैडम कहते मैगाहर्ट्ज नू आपां हर्ट्ज दे विच कन्वर्ट नहीं करना, तो ध्यान नाल देखो डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 4 ppm। ठीक है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी नू उत्ते लेके जावांगे। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी सी? 400 मैगाहर्ट्ज। ठीक है सीगी। हुण 4 ppm नू की लिखांगे? 10⁻⁻6 नहीं लिखांगे PPM नू। 400 मैगा किहदे बराबर सीगा? 10⁻6। तो 6 ते -6 कट्टे जाएंगे, तो ओवरऑल आंसर हर्ट्ज दे विच नहीं आ जाऊगा। ठीक है मैम, पता लग गया जी? किसी नू बाउंसर जा रहा होवे सब कुछ तो दस दो प्लीज़, कोई फायदा नहीं है जे तुसी। हाँ सर मैं इस करके लिखा गलती नाल 800 मैगाहर्ट्ज लिखा होया सीगा। वो वाला क्वेश्चन नहीं करना, आप वो बाद चो करांगे, आप तुहानू जदों एक लैवल ते पहुंच जाएंगे उस तो बाद करांगे। ठीक है, वो की है कि पहले इस वाला कट के फिर 800 वाले का भी कटना है, ता करके इसलिए मैं 400 ही कटता सिंपल वाला जो पूछा जाता तुहाडे मास्टर किटर लेक्चर। ये वैसे नैट का क्वेश्चन सीगा सर, ये नैट का मैं बनाया सी। ठीक है जी, आलो मैम। ठीक है मैम, नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल ट्राई करोगे जी? कॉपी पेन हैगा, ट्राई करोगे नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल? मैं मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर दूं थोड़ी स्क्रीन। सेकंड वाला न्यूमेरिकल ट्राई करो जी सारे, की आंसर आ रहा है दसो। गूगल मीट का कोई कोड भी होंगे? किसी को पता है कुछ?
एनिमल नहीं, जैसे हाँ नहीं, कई जैसे कह रहे हैं कि कोई आईडी पासवर्ड कैसे चल मिलता है, कोई है आइडिया आपको? नहीं नहीं, जैसे कई कह रहे हैं कि हमारा डायरेक्ट, हाँ इसमें जूम की तरह आईडी पासवर्ड तो नहीं चलता है जैसे जूम में होता है, इसमें होता है कुछ? अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कहीं होगा, ज्वाइन नहीं हो रहा था। हाँ जी जी, रोज 9 बजे होया करेगी क्लास। मैम ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। मैम ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नंबर दे देना है, लिख लो एक नंबर 8837623409, 23409। इस नंबर ਤੇ WhatsApp हाई कर देना, ठीक है, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕੱਲ ਦੀ क्लास। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया सारे ने एबला। देखो की कह रहे हैं, कैलकुलेट, हाँ 2.1 ही इतना ही आएगा। हाँ जी, कैलकुलेट द केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम, कहता डेल्टा कड्डो पीपीएम के अंदर, ठीक है, दैट हैज़ रेजोनेंस 128 हर्ट्स डाउनफील्ड, जिहदी ऑब्जर्व शिफ्ट कितनी दी हुई है हर्ट्स दे विच, 128 दी हुई है हर्ट्स दे विच। वो कहता स्पैक्ट्रोमीटर जिहड़ा ऑपरेट किते कर रहा है, ऑपरेटिंग फ्रीकुएंसी जिहड़ी मैगा हर्ट्स होंदी है वो कितनी दी हुई है, 60 मैगा हर्ट्स दी हुई है। तो ये गल पल्ले बन लो, ये वाला क्वेश्चन इस बार पक्का जरूर आएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो ध्यान नाल कर लेना, बहुत ही ईजी है। 128 हर्ट्स 60 मैगा हर्ट्स की करो, हर्ट्स कन्वर्ट कर लो किस तरह, 10⁻6 हर्ट्स, हर्ट्स ना हर्ट्स कैंसल, ठीक है, 128 को 60 ना डिवाइड करोगे तो की आएगा 2.1 आ जाएगा इंटू 10⁻6, ठीक है, 10⁻6 लिख सकते हैं पी एम का की आ गया अपने को डेल्टा की वैल्यू, कैमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 2.1 पीपीएम के बराबर आ गई, पता लग गया सारे नूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ जी हाँ जी हाँ, देखो डाउनफील्ड का मतलब की होया, देखो हमेशा जो TMS THM भी की एक रैफरेंस कंपाउंड है, रैफरेंस कंपाउंड एक दिता होया है, रैफरेंस कंपाउंड दे हमेशा सिग्नल की होएगा, डाउनफील्ड ही तो होएगा, अगले वाले पासे ही तो होएगा, हमेशा डाउनफील्ड ही तो होएगा, वो कहता डाउनफील्ड दिता होया सिग्नल एक, तो यदा मतलब रैफरेंस कंपाउंड की डेल्टा कितनी होंगी 0, तो मतलब डेल्टा की वैल्यू हमेशा कंपाउंड की 0 तो ज़्यादा ही आनी सी, 0 तो ज़्यादा ही तो आई है 2.1, तो यदा मतलब की है जोड़ा कैमिकल शिफ्ट है प्रोटोन की वो की है डाउनफील्ड है, ठीक है मैम। प्लीज़ माइक ऑफ कर लो, प्लीज़ माइक ऑफ कर लो जी, जिदा भी है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है मैम, पता लग गया। डाउनफील्ड का मतलब की है कि जोड़ा अपना प्रोटोन का सिग्नल है वो रैफरेंस कंपाउंड तो अगे आऊगा, जे अगे आऊगा तो वह मतलब की होएगा डाउनफील्ड आया, तो आपको शो हो ही गया डेल्टा की वैल्यू की है 0 तो ज़्यादा है, तो यह मतलब की है सिग्नल की है डाउनफील्ड है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग केमिकल शिफ्ट, ठीक है। हुण देखो कहता कि किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ते केमिकल शिफ्ट इन्फ्लुएंस होंदी है, तो याद रखना सब तो इंपॉर्टेंट फैक्टर जिहड़ा है इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब की होएगा, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब कोई समझा सकता मैनू? अच्छा हाँ जी,
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਡੀ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਡੀ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹੈਲੋਜਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲੋਜਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ? ਆਕਸੀਜਨਸ और नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब जिन्ने ज़्यादा हैलोजन लगे हुए हैं उन्ना ज़्यादा सिग्नल क्या होगा? डीशिल्डेड होके आऊगा। ठीक है जी, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया शील्डिंग ਜਿਹੜੀ है की होएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी, उल्टा होएगा। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब की होया? ਇਹਦਾ मतलब की होया? अगर मैं कਹਾਂ CH3 CH2Cl, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਦੇ अंदर ठीक है। अब देखो इसके अंदर कितने सिग्नल होंगे? ये 3 प्रोटॉन्स एक तरह के, इनको ए कैटेगरी का मान लिया। ये 2 प्रोटॉन्स अलग कैटेगरी के, इनको बी कैटेगरी का मान लिया। तो इसका मतलब इसमें 2 तरह के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने सिग्नल्स आएंगे? 2 सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, पता लग गया? ठीक है, अगर 2 सिग्नल्स आएंगे पेपर में, ये तो अपन ने कल कर लिया था इतना। तो अब पेपर में आपसे पूछता है कि बताओ प्रोटॉन HA और प्रोटॉन HB, इन दोनों में से किसका सिग्नल डाउनफील्ड आएगा? मतलब ये है हमारे पास ग्राफ, NMR का प्लॉट। ये आपके पास TMS के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या थी? 0 थी। वो पूछ ले कि ज्यादा आगे किसकी पीक आएगी। ठीक है, 2 पीक्स दी हुई हैं, HA की कि HB की। तो आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे? तो देखो जिस प्रोटॉन के साथ, जिस वाले कार्बन के प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, वो क्या होगा? मोर डीशील्डेड। तो बी वाला प्रोटॉन क्या होगा? मोर डीशील्डेड। पता लग गया? तो दूसरे वाला क्या होगा? अपने को पता है ऑर्गेनिक के अंदर +1 बुक के अंदर अपन ने पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस के साथ क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो प्रोटॉन अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो सबसे ज्यादा किससे खींचेगा? डायरेक्टली अटैच वाले से, मतलब CH2 से ज्यादा खींचेगा, CH3 से कम खींचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका सिग्नल क्या आएगा? लेस डाउनफील्ड आएगा। ठीक है, हमें पता है कि डाउनफील्ड का मतलब ज्यादा आगे, तो पीक ज्यादा आगे किसकी आएगी? HB की आएगी, और पीछे किसकी आएगी? HA की। इतना पता लगा? इतना ठीक है जी, सारों को पता लग गया। अब पेपर में क्वेश्चन अगर घुमा के आ जाता कि CH3 CH2Cl में बताओ कौन से प्रोटॉन मोर शील्डेड है, कौन से प्रोटॉन मोर शील्डेड है, तो क्या कह के आते हैं आप? कौन सा प्रोटॉन ज्यादा शील्डेड है? HA प्रोटॉन क्या है? शील्डेड प्रोटॉन्स है। ठीक है जी, पता लग गया शील्डेड और डी शील्डिंग का कंसेप्ट। ठीक है जी, इसके साथ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। 2 मिनट वेट करना। हाँ जी, ठीक है जी, इतना पता लग गया सारों को, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चले। अब क्या देखो, अब अपन ने क्या निकाल लिया? अब अपन ने सिग्नल्स फाइंड आउट कर लिए। सिग्नल्स कितने आएंगे? अपन ने केमिकल शिफ्ट देख ली, केमिकल शिफ्ट का क्वेश्चन किस तरह का आता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, वो सॉल्व कर लिया। उसके बाद अपन ने क्या किया? फैक्टर्स देख लिए।
उसके बाद अपन ने टीएमएस देख लिया, रेफरेंस कंपाउंड की बात कर ली, कौन सा रेफरेंस कंपाउंड है। फिर उसके बाद अपन ने देख लिया कि डाउनफील्ड डी शील्डिंग और शील्डिंग क्या होती है, ठीक है, शील्डिंग क्या होती है, दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देख लिया कि दोनों को कंपेयर कैसे करना है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को किस तरह लगाना है अपन ने पेपर के अंदर, ठीक है। अब कौन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ये अभी तक अपन ने कर लिया, ठीक है। अब पेपर में क्या आता है, ज्यादातर मास्टर केडर लेक्चरर केडर में सिग्नल्स के बारे में पूछा जाता है, बट आपको शायद पेपर में पीक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि बताओ इस सिग्नल के अंदर कितनी पीक्स आ रही हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, देखो रूल्स फॉर स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन सिग्नल्स। अब ध्यान से देखना, अगर मैं लिखूं CH3CH2Br, इसके अंदर सिग्नल बताओ कितने हैं, सिग्नल कितने आएंगे, 2 आएंगे। सारों को निकालने आगे, सारे बताओ कितने जिन्हें ज्वाइन किए हुए हैं अभी 35 लोग हैं यहाँ पे, बताओ सारों को पता लग गए सिग्नल 2 कैसे आए, किसी को कोई डाउट अभी शर्माना ना, ठीक है। तो किस तरह आए मैं फिर बता देता हूँ, ये 3 प्रोटॉन्स एक टाइप के, ये 2 प्रोटॉन्स एक टाइप के, बट दोनों आपस में क्या है, नॉन इक्विवेलेंट, तो 2 तरह के प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, तो सिग्नल के आगे 2 आगे। तो ये तो अपन ने कह दिया कि जो 3 HA हैं वो एक सिग्नल दे रही हैं, और 2 जो HB प्रोटॉन्स हैं वो क्या एक सिग्नल दे रही हैं, ठीक है। इतना तो आपने कर चुके हैं। अगर वो पूछ ले बताओ सिग्नल आ कैसा रहा है, मतलब सिग्नल कैसा आ रहा है, मतलब सिंगल पीक वाला है, सिंगल पीक वाले सिग्नल को आप कहते हैं सिंगलेट, 2 पीक्स वाला है, 2 पीक्स वाले को कहते हैं डबलेट, 3 पीक्स वाले को क्या कहते हैं, ट्रिपलेट, 4 पीक्स वाले को क्या कहते हैं, क्वार्टेट, 5 पीक्स वाले को क्या कहते हैं आपा, पेंटेट। उसके बाद सारे जितने भी आ जाएं उन सारों को क्या कह देते हैं आपा, मल्टीप्लेट कह देते हैं। इसके ज्यादा वाले को मल्टीप्लेट कह देते हैं, ठीक है। 6 वाले को सेक्सटेट भी कह देते हैं, बट ज्यादा बार मल्टीप्लेट ही लिखा होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये किस तरह फाइंड आउट कर रहे हैं, बड़ा ही इजी वे है इसको फाइंड आउट करने का। इसके लिए अपन ने क्या लगाना है, n+1, हाँ जी बिल्कुल ठीक, n+1 रूल लगाना है। n क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ नेबरिंग, हाँ, नंबर ऑफ नेबरिंग इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ नेबरिंग इक्विवेलेंट एडजेसेंट प्रोटॉन्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना सारे, देखो कि पेन का कलर कोई और ले लेंगे। बात करें अगर HA की, ये वाले प्रोटॉन की, ये 3 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल जो आ रहा है उसके नेबर में उस ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢ ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢ ਚ HA ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਚ ਕਿੰਨੇ प्रोटॉन्स पए हुए 2 प्रोटॉन्स। द रूल कौन सा लगाना है, n+1। तो प्रोटॉन्स किन्ने पए हुए, गुआंढी प्रोटॉन किन्ने 2, 2 + 1 किन्ना आ गया 3। तो ਇਹਦਾ मतलब की है ट्रिपलेट, तो ਇਹਦਾ मतलब की है ट्रिपलेट, ठीक है। तो ठीक है ये पता, हाँ जी हाँ जी मैम दोबारा दस देना है, पूछ लिया करो, ठीक है जी, सारे पूछ लिया करो, कोई चीज़ अगली गल नहीं, सारे इक्को नाल दे है, ठीक है। मैं की क्या कि ਜਿਹੜੇ HA ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਿਗਨਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ, n+1 रूल पढ़ांगे। n+1 रूल की करना है, ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੇਬਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ, ठीक है। अगर मैं गल करा HA प्रोटोन की, ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ HA ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ मैम, तुसी दसो ये ਜਿਹੜੇ 3 प्रोटोन है ਇਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚ ਕਿੰਨੇ प्रोटोन ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਗੁਆਂਢ ਚ ਕਿੰਨੇ प्रोटोन ਪਏ ਹੋਏ ਆ, 2 प्रोटोन ਪਏ ਆ। ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 2, n+1 मतलब 2 ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ 1 ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ
n+1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਏਗਾ? ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ? 3 ਪੀਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਮ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਮ, ਆ ਜਿਹੜਾ HB ਹੈਗਾ, HB ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ? ਜਿਹੜਾ H ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 3 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 3+1 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਕਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? 4। ਤਾਂ 4 ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਆਰਟੇਟ। 4 ਪੀਕਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ CH3 CH2 Br ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਪੀਕਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿਗਨਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ 2 ਤੇ ਟਿਕ ਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਪੀਕਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ? 3+4 ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ? 7 ਪੀਕਸ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੀਕਸ ਤੇ ਸਿਗਨਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈ ਲਿਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, CH3 CH2 CH Cl2, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਗਨਲਸ ਲਿਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਸਿਗਨਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 3 ਸਿਗਨਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਿਗਨਲਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਆਹ 3 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਇੱਕੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ, ਆਹ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ, ਆਹ 1 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? 3 ਪ੍ਰੋਟੋਨ HA ਵਾਲੇ ਹੈ, 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ HB ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ 1 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜਾ HC ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਆਂਢੀ ਪੀਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ HA ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੌਣ ਪੈ ਰਿਹਾ? B ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, HA ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ? 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ। 2+1 ਕਰ ਦੋ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, HB ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? 2 ਜਣੇ ਹੈ, 3 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? HB ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਟੋਟਲ 4+1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਂਟੇਟ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲੇਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ C ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ? 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ। 2+1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਪੀਕਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ? 11 ਪੀਕਸ ਆਣਗੀਆਂ। ਸਿਗਨਲ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ? 3 ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕ੍ਰਿਸਪ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, हाँ जी हाई रेज। देखो मैं बता देता हूं, देखो जो पीक्स होती है ना, पीक्स क्या है? सिग्नल के अंदर पीक्स बनी हुई है। ठीक है, इस तरह जब आप क्या करते हैं, जैसे इसको मैं आपको समझा देता हूं। मैं यहां पे अगर बनाता हूं, ड्रॉ करूं, अब देखो मैंने ना ये 3 चीजें ड्रॉ की है। अब ये दूर से क्या लग रहे हैं? 3 सिग्नल लग रहे हैं। ठीक है, सारों को 3 सिग्नल लग रहे हैं। हाँ जी, स्क्रीन छोटी होगी, मतलब जो मैंने बॉक्स बनाया है इसके अंदर 3 ऐसे लग रहा है, 3 सिग्नल है बस। बट इसको अगर मैं क्या करूं, इसको अगर जूम करूं तो दिखाई दे रहा है ये पीक्स है। एक पीक, दूसरी पीक, तीसरी पीक, एक पीक, दूसरी पीक, तीसरी पीक, एक पीक, दूसरी पीक। तो इसका मतलब क्या है? जो सर क्या कह रहे हैं कि जो अपा लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा होता है, मतलब जैसे मेगाहर्ट्ज पे आप NMR इंस्ट्रूमेंट लेते थे, अगर कम मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट होगा, फॉर एग्जांपल 20 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके अंदर अपने को पीक्स नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, क्योंकि क्लियर नहीं होगा सिग्नल। तो हमें बस ये दिखाई देगा कि 1 2 3 सिग्नल आ रहे हैं, बट ये नहीं दिखेगा किस तरह के सिग्नल आ रहे हैं।
ठीक है। अगर आप ज़्यादा मेगाहर्ट्ज का 90 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो उसके अंदर सिग्नल के साथ अपने को पीक्स भी पता लगेंगी कि सिग्नल कितनों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये पता लग गया। ठीक है, ये होती है रेजोल्यूशन, ये अपने काम की नहीं है। ठीक है, ये तो नेट वाला काम हो गया। ठीक है, बस अपन ने तो यही याद रखना है सिग्नल कैसे निकालने हैं और पीक कैसे निकालनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, हाँ जी मैम। CH3, हाँ जी मैम, देखो यही देख लो। हाँ जी मैम, मीथेनॉल इथेनॉल तो पहले तुसी आह वाला लिख कर लो। दो मिनट, आप इधर निकाल लो पहले तुसी। CH3CO O CH2CH3 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀक्स ਨਿਕਾਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨਲ ਨਿਕਾਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੀक्स ਨਿਕਾਲੋ, ਸਿਗਨਲ ਨਿਕਾਲੋ। हाँ जी, हाँ जी, कितनी आएंगी? 7 आएंगी। देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो किस, सारे कर लो। देखो किस तरह, देखो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ A ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ, ਆ B ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ, ਇਹ C ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ABC ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 3 ਸਿਗਨਲ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 3 ਸਿਗਨਲ ਆਣਗੇ। 3 ਕੀ ਹੈ? HA ਹੈ, 2 ਕੀ ਹੈ? HC ਹੈ, 3 ਕੀ ਹੈ? HB ਹੈ। HA ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 0 + 1, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਿੰਗਲੇਟ ਆਏਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲੇਟ ਆਏਗੀ। ਪੀਕ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਸਿੰਗਲ ਪੀਕ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ C ਦਾ ਦੇਖੋ, C ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ? 3 ਪ੍ਰੋਟੋਨ। 3 + 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4। 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਆਰਟੇਟ, 4 ਪੀਕਸ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ HB ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ? 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ। 2 + 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 3, ट्रिपलेट। तब पीक्स गिन लो, 1 + 1 + 4 + 3 कितना आ गई? 8 पीक्स आ गया। 3 सिग्नल आएंगे, 8 पीक्स आ गया। पता लग गया? क्लियर हो गया। हुण आ जाओ मैम दे गए थे मीथेनॉल ते इथेनॉल। तुसी दसो मैनू मीथेनॉल ते इथेनॉल दसो किन्ने किन्ने सिग्नल आएंगे, किन्नियां पीक्स आएंगे? मीथेनॉल च एक सिग्नल आएगा। क्यों एक सिग्नल का तो आएगा? क्यों मीथेनॉल में मैम एक सिग्नल क्यों आएगा? वही पूछ रहा हूं। देखो जी, देखो, चलो मेरी बात सुन लो अब। ठीक है जी, सारे अब माइक बंद कर दो अपना। ठीक है, मेरी बात सुन लो। ठीक है, अपने पास ये तो है मीथेनॉल, ये तो पता होएगा सारों को, ये तो मीथेनॉल है। दूसरा क्या लिखा है? इथेनॉल। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात क्या की? सिग्नल निकालो। सिग्नल किस पे डिपेंड करता है? कितने तरह के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो देखो ये जो 3 प्रोटॉन्स हैं ये A कैटेगरी के होंगे। जो ये वाला प्रोटॉन है ये B कैटेगरी का होगा। इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर 2 तरह के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। सिग्नल कितने आएंगे? 2 सिग्नल आएंगे। ठीक है, पहले ये पता लग गया। अब देखो, अब ध्यान से देखना। अब इथेनॉल के अंदर ये 3 प्रोटॉन्स A कैटेगरी के, ये 2 प्रोटॉन्स B कैटेगरी के, ये तीसरा प्रोटॉन C कैटेगरी का। इसके अंदर कितने सिग्नल आएंगे? 3 सिग्नल आएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। CH3OH, मेरे को बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मास नंबर 16। याद करो, जिसने भी कल की क्लास लगाई थी, मेरे को ये बताओ ऑक्सीजन NMR एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है? NMR क्या होता है? इनएक्टिव होता है ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब NMR इनएक्टिव होता है तो मतलब ये
क्या करता है, रेडिएशन को आगे नहीं जाने देता, एनएमआर की रेडियो वेव्स को आगे नहीं जाने देता। तो ध्यान से देखना, आप क्या करते हैं, पीक्स निकालते हैं। अब ये जो 3 प्रोटॉन्स है एच ए, इसके ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, एच ए 3 एच ए ਦੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਪੀਕਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲੋਗੇ 3 ਪੀਕ ਇਹਦੀਆਂ ਪੀਕਸ। एच ए ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ देखो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ एच ए ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, एच सुन लो जी, एच ए ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 1 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਐਨਐਮਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਐਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਨਐਮਆਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਐਚ ਏ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, 0 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ। 0 + 1 ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 1 ਸਿੰਗਲੇਟ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਬੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਚ ਬੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਐਨਐਮਆਰ ਸਿਗਨਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੌਣ, ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿਗਨਲ ਜਾਣ ਦਊਗਾ। ਤਾਂ ਐਚ ਬੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਦਿਖਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਿਖਣਗੇ, 0। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅੱਗੇ ਦਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ, ਐਨਐਮਆਰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 1 ਪੀਕ ਆਏਗੀ ਸਿੰਗਲੇਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਿਥੇਨੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ 2 ਪੀਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪੀਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਹੀ ਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। मैम दोबारा मैं समझा देना है, हूँ आ रही क्लियर मैम, मैम क्लियर आ रही है आवाज़। हाँ जी मैम, मैंने क्या कहा कि मीथेनॉल के अंदर 2 सिग्नल आएंगे। ठीक है, मीथेनॉल के अंदर जो ये 3 प्रोटोन्स है, 3 प्रोटोन के आप क्या करेंगे, अगर पीक्स निकालनी आप देखते थे नेबरिंग प्रोटोन, बट इसके अंदर जो CH3OH है उसके अंदर आप 3 प्रोटोन्स के नेबर में ये वाला प्रोटोन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये वाला प्रोटोन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। कल हमने किया था ऑक्सीजन क्या होता है, एनएमआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। एनएमआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल क्या करता है, रेडियो वेव्स को आगे ही नहीं जाने देता। जब रेडियो वेव्स एनएमआर के अंदर इस 3 प्रोटॉन्स पे जाएगी तो वो आगे नहीं जा पाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन बीच में आ रहा है। ऑक्सीजन क्या है, एनएमआर इनएक्टिव। तो इसका मतलब ये जो 3 प्रोटॉन्स हैं इनके नेबर में कितने प्रोटॉन दिखाई देंगे, कोई भी प्रोटॉन दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब पीक्स कितनी आएंगी, 0 + 1 सिंगलेट ही आएगी, एक पीक ही आएगी। ठीक है, जब आप इस प्रोटॉन की स्टडी करेंगे, बी प्रोटॉन की, तब आप रेडियो वेव इस पे डालेंगे, ये वेव आगे भेजने की कोशिश करेगा बट आगे भेजी नहीं जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ऑक्सीजन क्या होता है, एनएमआर इनएक्टिव। तो इसको भी अपने नेबर में कोई प्रोटोन नहीं दिखेगा, तो कितनी 0 + 1 सिंगलेट ही शो होगा। तो इसका मतलब मीथेनॉल के अंदर 2 पीक शो होती हैं अपने को। ठीक है, पता लग गया। हाँ जी, अगर पता लग गया, ठीक है जी, अगर कोई चीज नहीं पता लगती, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं, मतलब आवाज नहीं ठीक आती, तो प्लीज रिकॉर्डिंग में चेक कर लिया करो। ठीक है, या नेक्स्ट डे पूछ लिया करो। ठीक है, अब इथेनॉल बताओ, इथेनॉल का क्या बनेगा। हाँ जी, हाँ जी मैम, कुछ कह रहे थे। ठीक है जी, ठीक है, आंसर तो ठीक है। किसी का डाउट है आंसर? हाँ ठीक है जी, तो आपका नहीं है, वो मैम का है। मैम पूछियो, मैम आप पूछो डाउट। नहीं मैम, पेपर में ऐसे पूछा होगा। यहाँ बताओ, मिथेनॉल के अंदर CH3 की कितनी पीक्स आ रही हैं, CH3 की कितनी पीक्स आ रही हैं। यहाँ आपको पेपर में क्या दिया होगा, CH3OH, यहाँ पे A लिखा होगा, B लिखा होगा। आपसे पूछा होगा HA वाले की कितनी पीक्स आएंगी या HB वाले की कितनी पीक्स आएंगी, इस तरह फॉर्म में आएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है मैम, तो अब देखो, अब आ गई इथेनॉल की बारी। इथेनॉल क्या है, CH3। हाँ जी, हाँ जी, कैसे? हाँ, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको कि बताओ मीथेनॉल के अंदर
कौन सी पीक्स बन रही है, सिंगलेट सिंगलेट, सिंगलेट डबलेट, डबलेट सिंगलेट, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कौन सी बन रही है, सिंगलेट सिंगलेट बन रही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं, एक आया हुआ प्रीवियस ईयर, आपने याद करवा दिया, मेरे पास सेव है वो क्वेश्चन। तो देखो CH3CH2OH, ठीक है, ये क्या अपना इथेनॉल। अब देखो ये इथेनॉल की HA प्रोटोन है, ये HB है, ये HC है। ठीक है, 3 HA के नेबर में कितने प्रोटोन पड़े हैं, 2 प्रोटॉन्स, इसके गुआंढी 2 प्रोटॉन, 2 + 1 कितने आएंगे, 3, ट्रिपलेट आएगा। अब देखो HB कितने हैं, 2 HB है, इसके नेबर में कितने प्रोटोन है, HB के नेबरिंग में कितने हैं, अकेले 3। ये वाला तो कंसीडर ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन के इनएक्टिव है। ठीक, अब पता लगा जी। ठीक है, जो अपने थोड़ा सा कल बेसिक्स किया था वो किस काम आता है। ठीक है, अपने को डीप एनालिसिस करने का काम आता है कि किस तरह वो चीज नहीं ले रहा। ठीक है, मैं आपको वैसे भी समझा सकता था कि ऑक्सीजन NMR इनएक्टिव होता है, बट कल अपने डिटेल में कर लिया था। ठीक है, पता लग गया जी। अब क्या आएगा, 3 + 1 कितना आ गया, 4, तो इसका मतलब क्वार्टेट आएगा। अब HC प्रोटोन के कितने सिग्नल आएंगे, कितनी पीक्स आएंगी, उसके नेबरिंग में कोई प्रोटोन 0 + 1 1 सिंगलेट, तो टोटल पीक्स कितनी आई, 4 पीक्स आई। तो इसका मतलब इथेनॉल में पूछ ले कैसा 8 पीक्स, सॉरी 8 पीक्स आई हैं, तो कैसा आया, ट्रिपलेट क्वार्टेट सिंगलेट आया। पता लग गया सारा को। ठीक है, अब उतार लिया सारों ने, स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लो। कौन सा मैम, नहीं 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 मैम, कुछ नहीं, कोई सीक्वेंस कोई कुछ नहीं है पेपर में, आपको बस ये दिया हो, चाहे क्वार्टेट ट्रिपलेट सिंगलेट दिया हो, कुछ भी दिया हो, कोई वो लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, मैंने 3 प्रोटॉन्स, ठीक है, अगर आपको आज जितना किया समय लगा है, A, B और C 3 कैटेगरी के प्रोटॉन्स हैं, सबसे ज्यादा डाउनफील्ड कौन सा प्रोटॉन होगा, डाउन डी, सबसे ज्यादा डी, सबसे, और रुक तो जाओ, सबसे ज्यादा डी शील्डेड प्रोटॉन कौन सा होगा, क्यों CH2, क्यों CH2, प्लीज थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने कहा कौन सा सबसे ज्यादा प्रोटॉन डी शील्डेड होगा, डी शील्डेड की कंडीशन क्या थी कि वो किससे अटैच होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कौन अटैच्ड है, कौन अटैच्ड है, ये वाला प्रोटॉन डायरेक्टली अटैच्ड है। ये वाला प्रोटॉन पहले कार्बन के साथ अटैच्ड है, फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो सबसे ज्यादा कौन सा डीशील्डेड होगा, C वाला। तो इसका मतलब सबसे दूर HC सिग्नल आएगा, फिर HB वाला सिग्नल आएगा, फिर HA वाला सिग्नल आएगा। ठीक है, पता लगा, पता लगा जी। 38, हाँ जी मैम, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो मैंने क्या, प्लीज माइक ऑफ तो कर लो, ये कौन रोड पे बैठा है, CH3CH2OH, हंसो ना प्लीज, क्या कहते हैं, माइक ऑफ कर लिया करो। 2 मिनट वेट करो। हाँ जी, चलो देखो, मैं ये बात कर रहा है CH3C, प्लीज ना जी हंसाओ ना, CH3CH2OH है। ठीक है, ये 3 तरह के प्रोटॉन्स होंगे, A, B और C। मैंने कहा कि बताओ कौन सा ज्यादा डी शील्डेड होगा। तो डी शील्डिंग के लिए कंडीशन क्या थी, इंडक्टिव इफेक्ट लगना था। जो वाला प्रोटॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा डी शील्डेड होगा, मतलब सबसे ज्यादा दूर होगा TMS से। ये TMS का सिग्नल है, उससे सबसे दूर होगा। तो देखो जो ये वाला प्रोटॉन है, HC वाला प्रोटॉन है, वो क्या डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो वो क्या होगा, सबसे दूर होगा, HC वाला सिग्नल सबसे दूर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा है, HB वाला प्रोटॉन। HB वाला प्रोटॉन किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ, फिर वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ। तो उसके बाद कौन सा HB वाला आ जाएगा। तो HA वाला प्रोटॉन क्या सबसे दूर पड़ा है ऑक्सीजन से, तो उसका वाला जो सिग्नल है वो सबसे कम डाउन शील्ड होगा, डी शील्ड होगा। तो इसका मतलब पैटर्न क्या होगा, सबसे दूर HC, फिर HB, फिर HA। ठीक है मैम, पता लगा, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो अब देखो, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बोला जो प्रीवियस ईयर आपका आया हुआ है, क्वेश्चन आपका आया था।
हाँ ये क्वेश्चन देखो, दिख रहा है सारों को, विजिबल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1H NMR spectrum of ClCH2OH is expected to show, क्या सिग्नल आएगा उसका, किस तरह का सिग्नल। तो देखो तो उसके क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, धड़ाधड़ लग जाते हो 2 मिनट सॉल्व करने, ठीक है 2 मिनट पढ़ तो लो। गलती देखो, जब पेपर में आपको लगे ना, पेपर में बैठे हो कि क्वेश्चन पेपर बड़ा ही आसान आया, तो इसका मतलब गलत कर रहे हो आप सारा पेपर, ठीक है। तो ध्यान से आराम से बैठ के देखा करो, ठीक है, ऑप्शन पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ा करो, ठीक है, जल्दबाजी ना किया करो। 1H NMR है, ठीक है, पहले तो प्रोटोन NMR है, ठीक है, प्रोटोन NMR का मतलब प्रोटोन देखने हैं अपने, H देखने हैं, किसका, ClCH2OH का। क्या कह रहा है कि क्या शो कर रहा है, एक सिग्नल शो कर रहा है, 2 सिग्नल शो कर रहा है, 1 डबलेट 1 ट्रिपलेट शो कर रहा है, या 2 डबलेट। तो देखो उसने कंफ्यूज क्या किया है, ये पहली 2 ऑप्शंस में क्या बताया, सिग्नल की बात की हुई है, दूसरी 2 ऑप्शन में उसने पीक्स की बात की हुई है, ठीक है। समझ लगा फर्क क्या है पीक्स और सिग्नल के बारे में, ठीक है, सिग्नल के अंदर पीक्स होती हैं, ठीक है। अब देखो निकालते हैं वहां, अब ClCH2OH है, इसके अंदर सिग्नल कितने आएंगे बताओ। CH2 के प्रोटॉन एक काइंड के, OH वाला प्रोटॉन एक काइंड का, तो 2 सिग्नल्स आएंगे, 2HA का एक सिग्नल, HB का एक सिग्नल, ठीक है जी। अब ये तो हो गया 2 सिग्नल, ये तो अपना ऑप्शन ठीक हो गया। अब देखते हैं पीक्स कितनी आएंगी। अब देखो HA के गुआंढी, HA ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ, HA ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ। ठीक है जी, हाँ नो वाले ठीक है, किसी ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, HA ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। HA ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, NMR ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ HA ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0+1 ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਿੰਗਲੇਟ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ HB ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, HB ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਸਿੰਗਲੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਲੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪੀਕਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 1 ਡਬਲੇਟ 1 ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਗਲਤ, 2 ਡਬਲੇਟ ਗਲਤ, 1 ਸਿਗਨਲ ਗਲਤ, ਤਾਂ 2 ਸਿਗਨਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਨਸਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ठीक है जी, सारे क्लीयर हो गया, क्रिस्पेंट क्लियर हो गया। NMR ए है जी, NMR ना हुण मैं तुहानूं गारंटी ना कह सकदा, तुसीं 2 ਤੋਂ 3 नंबर पक्के ले ले, ठीक है जी, पक्के आपां कहने ना किल ठोक के। हाँ जी मैम एसीटोन दी भी दस दिना है, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ 3 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਨੰਬਰ, ਇਹ 2 ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, हाँ जी, चलो मैं दोबारा देख लो एसीटोन दी पीक्स, एसीटोन देख लो CH3COCH3, दस दो जी किन्नियां पीक्स, किन्ने सिग्नल आएंगे। ठीक है जी, ए भी क्या है, ए सेम कैटेगरी का, ए भी सेम कैटेगरी का, 6 प्रोटोन्स का की आएगा, 1 सिग्नल आएगा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, 1 ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੀਕਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸਿਗਨਲ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ A ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ A ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, 0+1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਿੰਗਲੇਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਏਗਾ, 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਸਿਗਨਲ ਆਏਗਾ, सिग्नल आएगा, सिंगल पीक आएगी, तो ये सिग्नल की होएगा, शार्प होएगा, ठीक है जी, ठीक है, पता लग गया, ठीक है। हुण जी पता लग गया, एक ये तुहाडा NMR खत्म हो गया। अगेन मैं तुहानूं कह रहा जी, ठीक है, जिन्होंने अज डैमो क्लास लगाई है तुसीं ज्वाइन कर सकते हो अपना बैच, ठीक है। इस
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ 13 ਸੀ ਵੀ NMR ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ 1H NMR, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 13 ਸੀ NMR, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਟਾਈਮਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਟੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਟਾਈਮਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਲਾਈਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ। ਮੈਮ ਮੈਮ ਐ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਲਾਈਵ, ਡਾਊਟ WhatsApp ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਮ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ WhatsApp ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਟਾਈਮਿੰਗ 2 ਮੰਥ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਕਚਰਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ मैं मैम तब तक पेपर भी हो जाएगा, नहीं तो चल ही जाएगा, हमारा नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, तब तक आप वो इनरोल कर लेना, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, तो कोई इशू नहीं है सर, चाहे आप जब तक, सर हमारी तो क्लासेस चलती जा रही हैं, अब इसी इसी बैच में हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, उन्होंने पुरानी क्लासेस ज्वाइन की हुई थी, तो इसका तो कंटिन्यू है, बट आपको कोई फायदा नहीं है, एक बार आपने सिलेबस कर लिया तो अगर लगानी है लगाओ आप, कोई इशू नहीं है, हमारी तो क्लासेस चलती जाएंगी, ठीक है मैम। अगर पेपर तक कह रहे हो पेपर तक चलेगी, मैं ये कह रहा हूँ 2 महीने के अंदर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ये बात कह रहा हूँ मैं, डन हो जाएगा आपका सिलेबस। हाँ टेस्ट आपके वीकली हुआ करेंगे, वीकली में इस तरह होंगे, माइनर पहले होंगे, माइनर मतलब चैप्टर वाइज होंगे टेस्ट, फिर मेजर टेस्ट होंगे, मेजर में क्या होंगे, कंबाइंड चैप्टर्स होंगे, फिर उसके बाद आपका इकट्ठा होगा फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे, ठीक है जी। मतलब आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, वो बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। हाँ जी, नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्गेनिक पहले, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के बीच में बैलेंस बना के रखेंगे, ऑर्गेनिक का एक चैप्टर किया, फिर इनऑर्गेनिक का, फिर फिजिकल का, फिर ऑर्गेनिक का, फिर इनऑर्गेनिक का, फिर फिजिकल का, ताकि अपना बराबर चले, ठीक है मैम। तो इसलिए बराबर पैटर्न में रखेंगे सारों, ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस डालेंगे, ठीक है। हाँ जी 2 डे डेमो क्लास थी, ठीक है जी। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर, मतलब व्हाट्सएप पे हाई वगैरह भेज देना, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए क्लास, ठीक है जी। और किसी को कोई डाउट, ठीक है जी, तो लीव कर दे क्लास, थैंक यू सो मच, ओके ओके जी, गुड नाइट जी, थैंक 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 यू मैम।